So once again, I welcome you all for this special webinar we have organized today. We have with us our guest for our speakers for today also, Vinayak and Zainab. To start with, I will first introduce myself. I am Avdut. I work with Center for Environment Education, that is CE Pune. Some of you might be knowing me कि अपन अपने ग्रीन क्लब नर्चरिंग वर्कशॉप्स लिए थे. So आप आप में से किसी के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ होगा पर्सनली आई थिंक. So some of you at least know me. Our another first speaker for today is Mr. Vinayak Salunkhe, who is a dynamic leader and who wears actually many hats in the field of environmental education and sustainability. Currently, he is serving as assistant manager outreach at earthday.org. Earthday.org is the world's largest environmental organization, and in this organization, he plays a pivotal role in spreading awareness and driving impactful initiatives. His journey began as an assistant professor of environmental science at various universities in India. But his passion for environmental education led him to create Global Youth for Environment and Sustainability, GY4ES.org. It is a unique platform that empowers young individuals with green skills and knowledge. Through GY4ES.org, Vinayak aims to nurture the next generation of environmentally conscious professionals and equipping them with the tools needed to create the positive change. And Vinayak's commitment to climate action and sustainable practices is absolutely unwavering, and he continues to inspire others through his work. Our another speaker is a youth, as all of you. She is Zainab Katlariwala. She is a program manager at Citizen Association for Child Rights, or CACR, which is organization working with children in various domains, including health, hygiene, and climate action. Her main focus is in behavioral change and sustainable interventions. So I welcome both of our speakers today. And I also request everyone, if you have any questions, comments, you can put it in the chat box or in the Q&A section. First, over to Vinayak. Vinayak sir, welcome, and please start sharing your thoughts with us. Welcome, sir. Uh, thank you so much, Odut, for the introduction and this opportunity. It is always a pleasure to have a conversation with individuals like inspired individuals in MICA and associated organizations and this platform. Because this is a unique platform for Maharashtra. हमारे महाराष्ट्र में ये हमारा सौभाग्य आहे की आपल्या मातीमध्ये आपल्या क्लायमेट ऍक्शन साठी इतका छान प्लॅटफॉर्म आपण उभा केलेला आहात आणि ग्रामीण भागातल्या मुलांना आपण जिथे जोडले गेलो तर की जिथं खरोखर ऍक्शनची गरज आहे आणि क्लायमेट ऍक्शन साठी फोकस असणारी आपली मायका प्लस सीई अँड अदर पार्टनर्सचा जो ग्रुप आपण इथे तयार केलेला आहे अतिशय उत्तम आणि उत्कृष्टरित्या आपला कार्य चालत असं मला नेहमी आनंद होतो आपल्यासोबत कुठलाही प्रोग्राम करण्यासाठी किंवा कुठल्याही इनिशिएटिव्हला जॉईन होण्यासाठी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी ऑन दिस मायका वेबिनार सिरीज. आय थिंक previously I have also joined for one webinar sessions with the Mica webinar series. So yeah, thank you so much. So shall I continue with the presentation, Udit? Yes, please, please. Okay. So hello everyone once again, and thank you so much for the time at the shiny evening. I can say shiny because it's very hot here, and I hope there you are also have a comfortable environment in your home and you are sitting and experiencing the same heat and here as well. So this year Earth Day, we have celebrated multiple locations. इस साल हमने अर्थ डे को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अलग अलग जगह पे बहुत ही अलग अलग तरीके से मनाया है. एंड इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हमें भी आपके तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है. बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के भी हमें मेसेज आते हैं की हमने हमारे कॉलेज में अर्थ डे इस तरह से मनाया आणि आमच्या कॉलेजमध्ये आम्ही अशा पद्धतीने कार्यक्रम घेतले. सो इट इज रिअली inspiring to see the action in from the youth, especially youth. कारण आपण बऱ्याचपैकी सगळे आता आजचे जे आपले अटेंडीज आहेत, so more or less all of us has convinced that
climate change is a real thing, and we need now action. Now it's the time to take an action, and for the climate correction, we need to unite and do something. Many students, when we meet, so they always say that we need to do something, but they don't know what to do, where to do, and that's why this kind of platform is very helpful. तो इसीलिए इस तरह के जो वेबिनार्स होते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके जो एक्शंस है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो, एंड इसी उत्साह के साथ हर वेबिनार आप अटेंड करते हो और कंटिन्यूसली आप आगे भी करते रहोगे। तो हम शुरू करते हैं। Just give me some seconds to share my screen and then we will start. सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, जो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक की जो थीम है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। आई होप आप सबको वीडियो दिख रहा होगा। राइट, सो अभी हमने देखा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो था अर्थ डे के इस साल की थीम का, एंड इस साल की थीम। विनायक, थोडस इंटरप्ट करतो फक्त। एकदा परत एकदा रिशेअर करता, एक छोटासा ग्रे पॅच एका साईडला आलाय. आय थिंक ते शेअरिंग मधला थोडासा इश्यू. एकदा फक्त हा स्टॉप शेअर करून रिशेअर केलं. ओके, सो ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। नाउ ओके। नाही, ऍक्च्युली थोडासा ग्रे पॅच येत आहेत आय थिंक स्क्रीनवर. स्लोली डिसअपियर होत आहेत, बट आय थिंक दोन ग्रे पॅच आय थिंक. बॅकग्राऊंडला काही ऍप ओपन केल्यामुळे कदाचित होत असेल, जस्ट हा, मे बी. या अर्लियर इन प्रॅक्टिस सपोज. आई विल ट्राय अगेन। या. Yes, it's clear. Absolutely. Best. You can continue. ओके ओके ओके, थैंक यू अब्दुल। सो या, एज वी सीन कि अभी हमने जैसे देखा कि इस साल अर्थ डे का जो थीम था वो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक था। हर साल ये थीम चेंज होता रहता है। अर्थ डे की आपको अगर हिस्ट्री आपने सुनी होगी, आपने देखी होगी, या आपने सर्च किया होगा कि अर्थ डे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसका एक ब्रीफ, मतलब एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। आई थिंक मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आप सबको पता होगा, बिकॉज अर्थ डे इज वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, हम सब सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। अर्थ डे तो सब सेलिब्रेट करते हैं, एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें होती है। अगर एक शॉर्ट में अगर बताया जाए तो एक अर्थ डे की जो शुरुआत है वो एक ऐसे ही सोच रखने वाले लोगों ने की थी, जो चाहते थे कि हमारे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उससे हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को, जो हमारा हैबिटेट है उसको, एंड उसमें रहने वाले सभी जीवों का एक सुरक्षित भविष्य जो है वो इंश्योर हो सके। तो हम कैसे हमारा जो हैबिटेट है वो बाकी जीवों के साथ साझा करते हैं, और उसका रक्षण या फिर जो उसका जो प्रोटेक्शन है वो हमें ही करना होगा, बिकॉज हमारे ही एक्शन से इस पूरे हैबिटेट को खतरा
हो रहा है। एंड इसीलिए इन सब लोगों ने एक साथ मिलके एक डिमांड की कि ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो हमें एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जानी होगी जहाँ पे हम ये इंश्योर कर सके कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए भी है हैबिटेट सुरक्षित रहे, और सबके लिए ये हैबिटेट इजी बना रहे, ऐसे ही बना रहे। सो ये 1970 में शुरू हुआ था यूएस में। फर्स्ट टाइम स्कूल स्टूडेंट, टीचर्स एंड ऑल stakeholders came together on the road, and you can imagine that day, that time there was no internet or not WhatsApp and the social media where we can just share a thing and it goes viral, राइट। अभी जैसा इतना इजी है वायरल होना, बट उस टाइम किसी चीज का वायरल होना, सब लोगों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। और ऐसे ही उस टाइम में लोगों ने इतना अवेयरनेस किया कि लाखों लोग रास्ते पे आ गए। एंड तब से लेके आज तक अर्थ डे हर साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने एक थिंक टैंक के थ्रू एक ऐसा प्रेशर बनाया कि हमारे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको एक अच्छी दिशा में, या फिर ऐसी पॉलिसीज, ऐसे एक्ट हमें चाहिए जो हमारा फ्यूचर इंश्योर कर सके कि वो सुरक्षित हो। ओके। एंड देन फर्स्ट लॉ कम, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। वो अमेरिका में पास हुआ, अमेरिकन कांग्रेस ने ये पास किया गया। एंड इसका ये एक उदाहरण हम दे सकते हैं, ये एक दाखला हम ऐसा दे सकते हैं हिस्ट्री में कि पब्लिक मूवमेंट का क्या असर होता है एक चेंज लाने में। तो ये एक पब्लिक मूवमेंट आज बनी हुई है। 190 से ज्यादा देशों में आज अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, मोर देन 192 कंट्रीज। एंड आप देख सकते हो कितने लोग अर्थ डे के साथ जुड़ते हैं हर साल, हर साल हर नई थीम के साथ हम जुड़ते हैं। इस साल की जो थीम है वो हम देखते हैं कि प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगर हम बोलते हैं कि क्या ये एक वॉर है प्लैनेट एंड प्लास्टिक के बीच का, तो यस, वी आर इन द वॉर स्टेज। का जो इन्वेजन हमारे इस इकोसिस्टम में हुआ है, नॉट जस्ट हम जो आंखों से देखते हैं, बट ऐसा भी प्लास्टिक हमारे सिस्टम में आज इंट्रोड्यूस हुआ है जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते। आपको पता होगा, आपने सुना होगा माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे सिस्टम में दौड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू इस साल हम फोकस कर रहे हैं, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक का। उसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी मैं हिस्ट्री अर्थ डे की आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो अर्थ डे की जो लीगेसी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड इस साल की जो थीम है वो 60/40, दैट मीन्स 60% ऑफ रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन बाय 2014। एंड ये हमारे हेल्थ के रिलेटेड है, हमारे जो सिस्टम इकोसिस्टम जो चेंज हो रही है उसके रिगार्डिंग है। तो ये हम पूरे वर्ल्ड को प्लास्टिक फ्री करने के लिए हमने ये थीम हम फोकस कर रहे हैं। आप एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा होगा, हम साइंस भी पढ़ते हैं कि प्लास्टिक हमारे खून या हमारे इकोसिस्टम में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है थ्रू माइक्रोप्लास्टिक। एंड फूड चेन, फूड वेब के थ्रू भी प्लास्टिक कैसे आगे आगे बढ़ते जा रहा है। तो अर्थ डे के साथ आप ऐसे मतलब अर्थ डे के सेलिब्रेशन में आपको बहुत सारी टूल किट्स या फिर जो रिसोर्सेस है वो हमारे वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। आप इजीली अर्थ डे के साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर अगर आप अपने पीसी या मोबाइल से earthday.org विजिट करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल किट्स मिलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे जहाँ से आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हो। तो ये इस साल के थीम के रिलेटेड और आप और क्या कर सकते हो, मतलब आपके और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं, ये मैं और बताना चाहूंगा। और प्लैनेट और प्लास्टिक के बीच का जो एक वॉर है उसमें हम हमारे प्लैनेट को जिताने में हम कैसे प्लैनेट की मदद कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें कि कोई भी प्लास्टिक की चीज हो उसको नेचुरली डिग्रेड होने में करोड़ों साल लग जाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर इट रिमेन्स इन अवर इकोसिस्टम। एंड ये डिग्रेड भी होता है तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, उसके माइक्रो प्लास्टिक्स जिसको हम बोलते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे फूड सिस्टम में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो ये पिक्चर है वो इसका ही रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे प्लास्टिक हमारे प्लेट में आ गया है। नॉट ओनली हम कि इजीली हम प्लास्टिक कुछ भी खा के, पानी का बोतल अगर आप देखे कहीं आप ट्रैवल पे चले गए और पानी का बोतल आपने लिया, पानी खत्म होने के बाद एम्प्टी बोतल हम बहुत सारी बार हमने देखा होगा, हमारे सामने बहुत सारे लोग ये एक्शन करते हैं कि खिड़की से इजीली ये फेंक देते हैं, नॉट इन द डस्टबिन बट इधर उधर कहाँ भी फेंक देते हैं। एंड ये प्लास्टिक हजारों साल वही रहता है, वो बाद में नाली से, नदी से गुजर के समुद्र में जाता है और वहां पे उसका
रिडक्शन शुरू होता है। एंड ये उतना इतना छोटे छोटे पीसेस में होता है कि उसको फिश इजीली ईट कर सकते हैं, और वो फिश के थ्रू फिर हमारे फूड चेन में आ जाता है, एंड देन इवेंचुअली इट कम्स टू अवर प्लेट। तो दिस इज जस्ट अ पिक्चर एंड यू कैन सी कि कहाँ कहाँ से हम प्लास्टिक कहाँ कैसे हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हुआ है और उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इन एनी action that we take and any system if we take, so lot of products that we use in our day to day life, हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उस सब में ये माइक्रोप्लास्टिक का जो इंट्रोडक्शन ऑफ इन द एनवायरमेंट जो है वो हमारे अ, मतलब जानते हुए या न जानते हुए भी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी बार हम इतना डीपली सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से एक्शन कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमारी सिस्टम में इस माइक्रोप्लास्टिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो those are just representation pictures that 60% of the material made into a clothing in plastic. So ये भी आपको पता होगा हमारे जो फैशनेबल ब्रांड्स है जो हम वेयर करते हैं बहुत सारे क्लोथिंग, तो उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है वो भी यूज होता है उसके। इसीलिए सस्टेनेबल फैशन एक नया डोमेन आज बज़वर्ड है कि रिस्पॉन्सिबली हम कैसे उसको वेयर कर सकते, कौन से ब्रांड के जो कपड़े हैं उसमें कैसे कम प्लास्टिक हम यूज कर सकते। बहुत सारे ऐसे ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा कि वो जो ब्रांड अपने कपड़ों में रिसाइकल प्लास्टिक अगेन एंड अगेन यूज कर सकता है। So this is a very important slide that I want to explain about how you can take an action against it. You all are convinced that those are the issues that we have facing today. Our earth is facing today due to our mistakes, and how we can correct it. How we can do something which is really help our planet to be a livable place for everyone. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब एक जो पॉलिसी लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। तो इसलिए एक पॉलिसी अच्छी होना बहुत ही जरूरी है, और आपको पता है पॉलिसी कौन करता है? ऑफ कोर्स अवर गवर्नमेंट करता है। और इसलिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए, नॉट ओनली अवर गवर्नमेंट, पूरे दुनिया में हम ये चाहते हैं कि सारे दुनिया के जो कंट्रीज है वहाँ के गवर्नमेंट्स ऐसा एक पॉलिसी बनाए कि ये जो प्लास्टिक की जो चेन है, मतलब कैसे प्लास्टिक फर्स्ट एट द फर्स्ट प्लेस कैसे वो तैयार होता है एंड एट द एंड कि कहाँ वो खत्म होगा जाके, तो पूरी उसकी जो लाइफ साइकिल है वो उसका लाइफ साइकिल असेसमेंट हो। एंड इसके लिए हमने एक ट्रिटी बनाई है जिसको ग्लोबल प्लास्टिक ट्रिटी बोलते हैं। उस पर हम साइन करके गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहते हैं। इस ट्रिटी को सपोर्ट करके आप गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हो कि कैसे एक पॉलिसी हम ला सकते हैं हमारे कंट्री में, हमारे जुरिडिक्शन एरिया में, जहाँ पे प्लास्टिक की लाइफ साइकिल असेसमेंट हो और जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन या फिर प्लास्टिक का यूज है वो रिडक्शन करके उसके अल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाए। सेकंड है कि अपने आप को प्लास्टिक के बारे में एजुकेट करना। सेकंड है एजुकेट योरसेल्फ ऑन प्लास्टिक। तब बहुत ही बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे एक्शंस जो है वो हमारे मतलब हम अवेयर तो होते कि हमें नहीं करना है ये पता है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं हमें पता भी नहीं होता कि ये एक्शंस हमारे इवेंचुअली जाके हार्म करेंगे आगे जाके नेचर को। सो सबसे पहले हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि विच आर द स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन टेक एंड रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम अवर सिस्टम। थर्ड वन इज द रिजेक्ट फास्ट फैशन दैट अभी हमने जैसे देखा
Hello. I think there is some issue with Naxer's connection. He will rejoin us in a minute. Yes, Vinayak is here. Yeah. Sorry, my No, Wi-Fi no, no here. issue. No issues. Okay, I think I need to share my screen again. One second. Yes. Yes. Okay, now it's visible. Yes. Yes. Okay. Yeah, so the third thing we have seen that will reject the fast fashion. The fourth thing is the great global cleanup को इस मूवमेंट को ज्वाइन करना होगा आप हमें हमारे वेबसाइट पे बहुत ही एक अच्छा कैंपेन है ग्लोबल मैप आपको दिखेगा जहाँ पे दुनिया में जहाँ जहाँ क्लीनअप होते हैं उसके डॉट्स आप उस मैप पे ढूंढ सकते हो और अपने नजदीकी एरिया में कहाँ पे क्लीनअप हो रहा है आपको वहां पे पता चलेगा तो आप उस क्लीनअप मूवमेंट में जब पार्टिसिपेट होते हो आपने मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शामिल हुए होंगे कहीं ना किसी जगह पे आपने क्लीनअप किया होगा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक कैंपेन है जिसको स्वच्छ भारत कैंपेन बोलते हैं आपने उसके एडवर्टाइज देखे होंगे पोस्टर्स देखे होंगे And मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में आपने ये फर्क भी देखा होगा कि हमारे रेलवे स्टेशन हमारे पब्लिक प्लेसेस जो पहले की जो 10 साल पहले की जो स्टेट थी और अभी की जो स्टेट है काफी चेंजेस आ चुके हैं बहुत सारे स्टेट ने भी बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन्स चला है जैसे कि माझी वसुंधरा प्रोग्राम हो गया महाराष्ट्र में और आपको पता होगा कि हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्वच्छ सिटी सर्वेक्षण भी होता है हर साल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रैंक्स भी हम देखते हैं कि इंडिया में कौन सी सिटी सबसे क्लीन है तो कौन बता पाएगा अगर कमेंट में किसको पता है कि इंडिया की कौन सी सिटी कंटिन्यूअसली 2 बार पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में फर्स्ट आई है अगर किसको पता है प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मैं एट द एंड मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा मुझे लगता है कुछ चैट बॉक्स में आंसर आए हैं ऋत्विक मिस्त्री या यू आर करेक्ट द इंदौर इज द सिटी विच इज continuously 2 time won the award of स्वच्छ सिटी सर्वेक्षण सो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जो पब्लिक को अवेयर करते हैं क्लीनलीनेस के बारे में एंड द ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप इज द ग्लोबल प्रोग्राम started by Earth Day Network where you can join this movement and आपका जो क्लीनअप है वो उस मैप पे आप रजिस्टर कर सकते हो एंड वॉलंटियर्स मोबिलाइज करके पीपल मोबिलाइज करके उनको सेंसिटाइज कर सकते हो कि क्यों क्लीनलीनेस जरूरी है एंड मैं जो मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम क्लीनलीनेस ड्राइव में शामिल हुआ तो जब हम हमारे हाथों से अगर दूसरे का कचरा उठाते हैं तो हमारे हाथ फिर से कचरा करने के लिए उनका ये नहीं होता डेयर नहीं होता जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम एक एक्शन करते हैं तो वो एक्शन हमारे बिहेवियर में चेंज कर देती है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और उसके बाद जो इतने क्लीन अप ड्राइव मैंने अटेंड किए जितने अटेंडीज के साथ मेरा बातचीत हुआ तो हर एक का वही एक्सपीरियंस था कि जब एक बार हम इस क्लीन अप ड्राइव में शामिल होते हैं जब हम ये दूसरों का कचरा हम हमारे हाथों से उठाते हैं तो हम कभी फिर से कचरा नहीं करते हम गलती से भी कभी कचरा नहीं करेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल चेंजेस की मूवमेंट है जो क्लीनअप हम ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके लिए ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप हीरो कंपटीशन भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं साउथ ईस्ट एशिया को फोकस करके तो इसके लिए भी आप अप्लाई करते हो अगर आप किसी क्लीनअप ग्रुप का हिस्सा हो अगर आप खुद क्लीनअप ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हो या फिर किसी क्लीनअप ड्राइव में हर वीक शामिल होते हो फ्रिक्वेंटली आप क्लीनअप करते रहते हो तो आपके ग्रुप को आप इस कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो साल में एक बार ये कंपटीशन होता है और हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे लीडर्स को हम अप्रिशिएट करें उनके काम को हम रिकॉग्नाइज करें एंड उन काम को लेके उनको लेके हम उनका काम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सेलिब्रेट करें उनके साथ ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले बाकी लोगों के सामने उनका वर्क रखने के लिए सो कारपोरेट का हेल्प उससे मिलता है बहुत सारी नेटवर्किंग होती है लाइक माइंडेड पीपल वहां पे मिलते हैं तो जरूर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए earthday.org एंड सर्च कीजिए वहां पे ग्रेट ग्लोबल कैंपेन का एक पेज है वहां पे ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप का एंड वहां पे आपको ग्रेट ग्लोबल क्लीनअप हीरो
चैलेंज वहां पे आपको दिखेगा, उस बटन पे आप क्लिक कीजिए और नॉमिनेट कीजिए। नॉमिनेशन अभी ओपन है, 15 जून तक उसकी डेडलाइन है। 15 जून के पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपको उसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार में मेरा कॉन्टेक्ट पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और एक्शंस जो आप ले सकते हो वो है कि प्लास्टिक के ऊपर क्विज भी हमने बनाया। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेस आपको वहां पे मिलेंगे, टूल किट्स मिलेंगे, वो आप जरूर यूज कीजिए। बहुत ही आपकी नॉलेज में वो इम्प्रूव करेंगे कि इतना सारा मटेरियल आपको मिलेगा कि आप खुद भी एजुकेट हो सकते हो और दूसरों को भी उसके उससे एजुकेट कर सकते हो। देन प्लास्टिक डिटॉक्स चैलेंज है कि हम डेली लाइफ में जो फूड खाते हैं उसमें कितना हम कैसे हम उसको प्लास्टिक डिटॉक्स कर सकते हैं। देन एक सिंपल एक्ट ऑफ ग्रीन जिसको हम प्लांटेशन बोल सकते हैं, या कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारे पृथ्वी को ग्रीन करने के लिए हम लेते हैं, तो वो एक सिंपल एक्ट हम ले सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट इज वॉलंटियर विद अस। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इनिशिएटिव आपको अगर बहुत ही अच्छा लगता है और आपको उसमें इंटरेस्ट जगता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये एक्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और इस एक्शन को लेके मैं मेरी सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकता हूँ, लीडरशिप ले सकता हूँ, तो हमारे साथ ऑलवेज वेलकम कि आप हमारे साथ जुड़िए और वॉलंटियरिंग के अपॉर्चुनिटी को, उसका फायदा उठाइए। उसकी भी लिंक मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हो और कैसे वॉलंटियर्स आप हम कर सकते हो। राइट देन just the next slide. Right. So the new campaign for the students स्पेशली, हम स्टार कैंपस अवार्ड नाम के कंपटीशन हम रन करते हैं, जो खास करके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें बहुत सारा आज का जो यूथ है वो कैसे हमारे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही इस स्टार कैंपस अवार्ड्स को एक्शन उसमें ले सकते हैं। तो स्टार कैंपस अवार्ड बेसिकली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इट्स कंपटीशन फॉर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल कैंपसेस। एंड इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो वो है कि कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस बनाना। इंडिया के जो कैंपसेस है उसमें से जो सारे कैंपसेस है उनको कार्बन न्यूट्रल बनाना। ये बेसिक सबको आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक है उसका जो की फैक्टर है वो है कार्बन इमिशन। करेक्ट। उसमें कोई नई बात नहीं, मुझे ये कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ कि आज हम जो वेबिनार को जुड़े हुए हैं वो मोर और लेस सबको हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको ये और जानना है तो आप अपने आप को खुद से एजुकेट कर सकते हो, गूगल के थ्रू आप ये जान सकते हो। और माइका के बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारे माइका के प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवेलेबल है कि वो आपको एजुकेट कर सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है। तो यहाँ पे मैं उसका एक की फैक्टर बता रहा हूँ कि कार्बन इमिशन इज द की फैक्टर, एंड उसको कैसे हमें रोकना है या फिर उस कार्बन इमिशंस को कैसे हम रोक सकते हैं हर किसी पॉसिबल वे से, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट एक्शन या फिर क्लाइमेट करेक्शन। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड यही हमें स्टार कैंपस में करना है। एंड ये बज़ वर्ड्स तो आपने सुने होंगे कि कार्बन रिडक्शन, नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल, ये जो बज़ वर्ड्स है उसको प्रैक्टिकली कैसे हमें फॉलो करना है। मतलब ये सारे बज़ वर्ड्स यूज करने में बहुत फैंसी लगते हैं, लेकिन अगर हम उनको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसा रह सकता है, ये अगर आपको करना है तो स्टार कैंपस अवार्ड इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सी एंड मेजर द चेंजेस दैट यू कैन ब्रिंग इन योर कैंपस। ओके, सो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, आपके कैंपस में जो जो रिसोर्सेस यूज होते हैं उसका हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 5 की फैक्टर्स आप देख रहे होंगे। सबसे पहला जो है ये एनर्जी के रिलेटेड है कि कौन से सोर्स से एनर्जी वहां पे यूज होती है। आपके कॉलेज में अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली एनर्जी एमएससीबी से आप या फिर किसी भी लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली आप बाय करते हो कैंपस एज अ कैंपस, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस में आज हम देखते हैं कि सोलर पैनल्स होते हैं, जो बहुत सारी जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो अपने आप पूरी करते हैं। सेकंड है वाटर मैनेजमेंट, जो कॉलेज के कैंपस में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल होती है। अपने खुद के वाटर रिसोर्स है या यूनिवर्सिटी या कैंपस को वाटर बाहर से लेना पड़ता है, वो हम मेजर कर सकते हो।
नंबर ऑफ टैप मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल मेजर कर सकते हैं, पर पर्सन पर कैपिटा कितना वाटर यूज होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। इसका पूरा टूल किट आपको मिल जाएगा इस कंपटीशन में। जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक टूल किट मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे कॉलेज का ग्रीन ऑडिट कर सकते हो, जिसमें पूरे ये जो रिसोर्सेस है, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, ग्रीनरी, सबका आप मेजर करके आप एक इवोल्यूशन कर सकते हो अपने आप को, सेल्फ इवोल्यूट की कितने कॉलेज में रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसको हम कम से कम यूज करके उसको अल्टरनेटिव रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ वाटर का। थर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉलेज में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो आप वहां पे देख सकते हो। एक प्रोजेक्ट की तरह आप ले सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, लास्ट ईयर के, आपको बहुत एनवायरमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में कंपलसरी होता है, या फिर मुझे नहीं पता फर्स्ट ईयर में होता है, या क्योंकि बहुत सारे डिग्रीज में सेकंड ईयर को होता है, कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर को ही पढ़ाया जाता है और उसमें प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो ये एज अ प्रोजेक्ट आप ले सकते हो और कॉलेज का इवोल्यूशन कर सकते हो कि कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट कैसे मैनेज हो रहा है, ये तीनों चीजें कैसे मैनेज हो रही है, वहां पे क्या प्रैक्टिसेस चलती है, और कौन सी एडिशनल प्रैक्टिसेस से हम उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ मेजर तीन एक्शन। उसके बाद है फोर्थ वन इज ग्रीनरी, कि कैंपस में ग्रीनरी कितनी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कैंपस के पास जगह ही नहीं है कि अपना वो खुद का एक गार्डन या फिर अपना प्लांटेशन साइट बना सके। लेकिन बहुत सारे आउट ऑफ द मुंबई और द आउट ऑफ द महाराष्ट्र मैंने कैंपसेस देखे हैं, बहुत ही ग्रीन कैंपसेस है, बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन किए हुए हैं। कॉलेज के बाहर जाके जब वो एनएसएस के स्टूडेंट्स को लेके बाहर जाते हैं तो उन्नत भारत अभियान के तहत तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे गांवों को उन्होंने दत्तक लिया हुआ है, एंड वहां पे वो जाके प्लांटेशन करते हैं, वो उन साइट्स को मैनेज करते हैं। ये ग्रीनरी ऑफ द कैंपस के में कंसिडर हो जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज अवेयरनेस बियॉन्ड द कैंपस, की कैंपस के बाहर जाके कैंपस के आजू बाजू के जो लोग हैं उनको आप कैसे अवेयर करते हो इस सारे रिसोर्स के बारे में, इन सारे रिसोर्स के बारे में, इन सारी जो ये जो प्रोसेसेस है उसमें से कैसे हम कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें से कैसे हम कार्बन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और कैसा हमारा कैंपस हम कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं, इसके लिए ये कोशिश हमारी जारी रहती है। तो आप इसके लिए कैसे ज्वाइन हो सकते हो? अगर आप, एक तो सबसे पहले स्टार कैंपस अवार्ड्स में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको आपके किसी भी टीचर्स के साथ आप पहले बात कीजिए कि हमारे कैंपस में ऐसे एक कैंपस के लिए कैसी कंपटीशन है, हमारे कॉलेज को या कैंपस को हमें ज्वाइन करना होगा इसके लिए, एंड इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं लेता हूँ। एंड ये जो स्टार कैंपस अवार्ड्स के जो डेट है वो इस मंथ के लास्ट में है, मतलब अभी जो जून, सॉरी आई थिंक मई, मई का जो एंड है वहां तक इसकी डेडलाइन है। तो सबसे पहले ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नीचे जो लिंक है वो आप देख सकते हो, उसमें आपको स्टार कैंपस अवार्ड्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप होगी आप उसको अप्लाई करना। एक सब मैं 2 मिनट लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपके पास क्यूआर हो, बाद में आप इस लिंक को एक्सेस भी कर सकते हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी विल गो अहेड। Okay. Uh, okay. So now the first step is apply for the Star Campus Awards, and the second step is community join। आप वहां पे आप जब अप्लाई करते हो तो उसके नीचे ही ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक ऑप्शन आपको आता है, तो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। उसके बाद स्टार कैंप उस कम्युनिटी में स्टार कैंपस नेटवर्क का भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको स्टार कैंपस के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एक हमने हैंडबुक बनाया है, एक केस स्टडीज बनाई है कि कैसे हमारे क्लाइमेट एजुकेशन क्लासरूम में सिखाए जा सकते हैं, कैसे क्लाइमेट एजुकेशन हमारे क्लासरूम्स में लेके आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ई बुक्स है, वो भी आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो उस लिंक पे। तो हर कोई इनिशिएटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो आपको लगता है कि इसमें हम इंटरेस्ट लेके काम कर सकते हैं, यस, या फिर मेरी पैशन इसमें मैं रेजोनेट कर सकता हूँ इस इनिशिएटिव से, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव एंड वॉलंटियर विद अस। So I think more or less this is the ways that you can join and take an actions। बहुत सारे, मतलब ये मेरे ये कोशिश ये थी कि बहुत सारे यंगस्टर्स को, यूथ को पता नहीं होता कि मुझे करना तो है, कुछ एक्शंस मुझे करनी तो है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, वो
बहुत बार वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए आज का मेरा ये कोशिश था कि आपको एक इस इनिशिएटिव्स के बारे में बताया कि अर्थ डे के साथ आप जुड़ के कैसे इस इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर सकते हो एज अ वॉलंटियर, एंड इस मूवमेंट को कैसे आप आगे लेके जा सकते हो। So yeah, more or less this is the way, and this is my contact information. Anytime if you need any help or any information, additional information, you can connect me over my cell phone or email address. Okay, so I think, yeah, thank you so much for the uh, listening to me, and opportunity for uh, to present in front of you. Thank you. Yes. Thank you. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच विनायक सर। एक तो अर्थ डे कैसे शुरू हुआ एज अ पब्लिक मूवमेंट एंड नाउ इट्स बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट, ये बैकग्राउंड अपने आई थिंक इट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लेते हैं और उसको अगर हम उतना यकीन के साथ वो करते हैं तो उसको पूरा वर्ल्ड भी अडॉप्ट कर लेता है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल अर्थ डे का जो है, आपने काफी अच्छे तरीके से वो किया। एंड आई थिंक द स्टार कैंपस अवार्ड और एनी सच सस्टेनेबल इनिशिएटिव एट कैंपस will be really helpful for students and for our green club also. So thank you very much, Vinayak sir. Now I invite Zainab, who works with CACR as assistant manager. We have also few questions. So we'll take the all the questions at the end. After Zainab will be sharing her experience of working with community and schools. Uh, and Zainab is also a youth like all of us participants. So she's sharing her experience to work and how the behavior change actually she did in communities and schools, colleges. She will be sharing her experience. Welcome, Zainab. You can share your screen. Yes, we can see your screen. You are mute. So thank you Avdut for welcoming me and inviting me here. And विनायक रियली मतलब इतना एंथुजियाज्म से हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया, बट वी डिड नॉट नो द बैकग्राउंड कि ये एक्चुअली इट वाज अ मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग. सो इट इज रियली नाइस टू नो अबाउट दैट. So yeah, my name is Zainab, and I'm a, like Avdut said, I'm a program manager with CACR, Citizens Association for Child Rights. And we are partners with UNICEF Maharashtra. So we implement various programs in water hygiene, sanitation, nutrition, and now from last couple of years on climate change, plastic waste management. Actually, our journey in climate change started with a plastic waste management program, and we have held this intervention of segregation at source as our core program. Uh, Apart from other water conservation and energy conservation intervention. Give me a second. Okay. Is it full screen now? Yes. Okay. Okay, there is some issue. Okay, sorry. Sorry. Share screen. Give me a second, okay? I'm trying to. Share. Okay. So yeah. So in our intervention is involving young minds for a circular future, because since we have been started working with children, we thought that why not start it with children. So we did this intervention and we started it in 2021, and now about 4 years now, 3 to 4 years now, we have been working with more than 300 schools in 4 corporations. So I will take you through the intervention. So the project compliances for right now, the program is catering to is life. Uh, Although am I supposed to speak in Hindi? हाँ, हिंदी would be best. हिंदी Sorry. English you can Yeah, mix it. I remember Depa told me that. हाँ,
तो ये जो प्रोजेक्ट था वो काफी जो गवर्नमेंट की ट्रीटीज है, गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस है, रेगुलेशंस है, उसको मीट कर रहा था। थोड़े जो है उसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, माझी वसुंधरा, गार्बेज फ्री वाला, अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12-13, मोस्ट स्पेशली स्वच्छ सर्वेक्षण एंड अवर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड इट्स अमेंडमेंट्स. The process that we followed basically was that it was a very one of a kind intervention, because from our experience हमें क्या समझा कि वन टाइम कलेक्शन ड्राइव काफी स्कूल्स में हो रहा था, कि एक नोटेबल डे पे कलेक्शन ड्राइव कर दिया, एक्स अमाउंट ऑफ प्लास्टिक कलेक्ट कर दिया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ द इंटरवेंशन. पर हमने जो कोशिश की थी वो बिहेवियरल चेंज करने के लिए की थी. तो वी स्टार्टेड कि हमने स्कूल्स को अप्रोच किया कि ये एक टाइम का कलेक्शन ड्राइव नहीं रहेगा, ये एक साल भर का इंटरवेंशन रहेगा. एंड हमने वही मेथोडोलॉजी अराउंड 3 कॉर्पोरेशंस में की थी. एंड नाउ हमने मुंबई के साथ भी लास्ट ईयर ये इंटरवेंशन शुरू किया था. तो हमने स्कूल को अप्रोच किया, बच्चों के साथ सेंसिटाइजेशन सेशंस किए, हमने सब तरह के स्कूल्स के साथ काम किया. हमने इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ काम किया, कैम्ब्रिज बोर्ड के साथ किया, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनके साथ हमने काम किया. थाने, नवी मुंबई और पनवेल के साथ हमने ये इंटरवेंशन की शुरुआत की थी. तो फिर बच्चों ने, एक बार हमने जो सेंसिटाइजेशन सेशंस कर लिए थे उनके साथ, फिर बच्चों ने सेग्रीगेशन एट सोर्स प्रैक्टिस करने का शुरू किया था. तो काफी चैलेंजेस आए, बिकॉज पेरेंट्स जो थे दे वर टेलिंग के एक टाइम का तो कलेक्शन ड्राइव ठीक है, बट ये आप ईयर लॉन्ग करवा रहे हो. जो प्रोजेक्ट का मेथोडोलॉजी था वो भी ऐसा ही था कि बच्चों को मार्क्स मिल रहे थे, एंड वो मार्क्स इस तरह से बनाए गए थे कि एटलीस्ट उनको 6 महीना लगेगा वो 200 पॉइंट्स लाने के लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कोई स्पेसिफिक टाइप का प्लास्टिक पे फोकस नहीं कर रहे थे. एवरी टाइप ऑफ प्लास्टिक इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टॉप दैट प्लास्टिक टू गो इनटू लैंडफिल. ये हमारा मेन मोटो था. फिर हम रेगुलरली ये स्कूल्स में हमारे कलेक्शन ड्राइव ऑर्गेनाइज करते थे, एंड हमने ये प्लास्टिक रिसाइकल करवा के यही स्कूल्स में बेंचेस, पॉट्स वगैरह के तरह हमने रिटर्न किया था. सो जो बच्चे थे उनको एक इंसेंटिव मिला था कि अच्छा ये हमने प्लास्टिक दिया, लाइक अ वेस्ट टू वेल्थ. ये बच्चों के घर के फोटोज हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे सेग्रीगेशन एट सोर्स. अभी फिलहाल हमने 4 कॉर्पोरेशंस में काम किया है, थाने मुंबई, नवी मुंबई एंड पनवेल कॉर्पोरेशन. अराउंड 300 प्लस हमने स्कूल्स के साथ जुड़े हुए थे, एंड अराउंड 1,62,967 बच्चों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया. सेंसिटाइज हमने ज्यादा बच्चों को किया था, बट इससे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया. सो इट वाज लाइक अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, बट हमें अराउंड 7 महीने लगे टू actually start collecting the waste, because convincing the school, convincing the parents for this concept that नहीं, एक टाइम हमें नहीं segregate करना है, we want to inculcate this practice. Then we distributed it. Simultaneously हमारे efforts were to get the linkages with the municipal corporation and its solid waste department, because हमें कुछ भी ऐसे साइलोज में प्रोजेक्ट नहीं करने थे. तो हमने कोशिश किया कि जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके साथ जुड़ के ये काम किया जाए, उनके थ्रू मैसेजेस जाए, ताकि सस्टेनेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहे आफ्टर वी एग्जिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट. सो अराउंड 11.7 टन्स हमने जस्ट 4 months में हमने वी वर एबल टू गेट इट सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड. दिस वाज दैट कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था बिकॉज उनका मैंडेट है. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अस, that how education and education policies play a role in
inculcating behavior related to hygiene, sanitation and now climate action. So हमारे जितने भी youth यहाँ पे जुड़े हुए हैं, so for them, whoever is interested in advocacy, policy and all, they should see that ये छोटी छोटी बातें जैसे मैनेजमेंट है स्कूल का, स्कूल के जो मेन हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है when we go on ground के okay school management is good response. We also distributed certificates to schools. This was that although हमने 4 कॉर्पोरेशन में काम किया, पनवेल कॉर्पोरेशन ने took the ownership for the program and hence हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम पनवेल. what they did that उनके बिहाफ पे अंडर द गार्बेज फ्री सिटीज सर्वेक्षण एक्टिविटीज उन्होंने पासबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्कूल्स में, दैट दिस इज लाइक अ बैंक काइंड ऑफ थिंग, दैट ओके इतने बच्चों ने इतना किया. एंड कॉर्पोरेशन से जो वो अगर आ रहा था सर्कुलर, तो इवन द स्कूल्स हु वर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इनिशियली participated in this intervention. So from the project that we implemented, these were like points for scalability and sustainability. Targeted instructions from ULB to schools and housing society for active participation is a must. जहाँ जहाँ Navi Mumbai, just I would give an example. Navi Mumbai Corporation already implemented this kind of project. So they said that we don't want to duplicate it. So उनसे circular जाने में बहुत time लगा. So we had that gap के school is like करना है नहीं करना है करेंगे. बहुत सारे dropouts आ रहे थे. But अगर ULB से instructions जा रहा है तो वो जो time है resources है काफी बच रहे थे. Second role where NGOs or our youth can play a role in is awareness campaign. Awareness campaign is very important because although everybody, we are now telling it like a sensitization campaign because everybody is aware in today's date. But that push is required that okay, you start today, you start little, then तुम थोड़ा बढ़ा के जाओ. Start with dry and waste waste, then you do the plastic waste management, understanding that where is the starting point of the public that we are catering. So communication skills are very important. After that, logistic of segregated plastic should be managed by the ULB for the cost efficiency. हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट था उसमें हमारा जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट किया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट एक्स अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, that got doubled because of non cooperation from the ULPs. और जहाँ पे हमें ULBs कॉर्पोरेशन ने सपोर्ट किया था वहां पे हमारा ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ. सो काफी कॉस्ट एफिशिएंसी होता है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज. Then the micro segregation. If we want to make it a circular economy model or we want to make a business model, micro segregation is very important for further recycling of the plastic waste. There are certain plastics जो अलग तरीके से recycle होता है और जो MLPs वगैरह होता है that has to go to the cement factories and everything. So micro segregation is very important for increased value. तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन मतलब दो हमने केस स्टडी करे थे कि एक तो यूएलबी के अंडर एमआरएफ इस्टेब्लिश करने के लिए मटेरियल रिसोर्स फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट्स ने फंड्स एलोकेट किए हुए हैं अंडर SBM 2.0. So we can leverage that resources and reduce the cost efficiency, or we hire or we get on board certain women centric self help groups, community based organization जिनको minimal cost में we can give them an income opportunity. So it will be, if we do that, income generation for SHGs and SBOs, and then the recycling of micro segregated plastic and giving back to the community. So far, apart from the challenges that we are facing in again for the logistic point of view and the micro segregation point of view, because यहाँ पे if we invest our additional funds, it is not cost efficient and वो business model नहीं हो पा रहा है.
बट प्लास्टिक सेग्रीगेट हो रहा है एंड टन्स ऑफ टन्स. सो वी आर वर्किंग इन अर्बन एंड रूरल, दोनों का मॉडल अलग अलग है. इन रूरल वी आर इवन इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी बिकॉज स्कूल के बच्चे काफी कम होते हैं. अर्बन में वी गेट हाई डेंसिटी schools with good enrollment ये, तो we get good numbers. So this was the cycle that plastic consumer, we all are plastic consumers. So we then involve them that okay, this is how we can, either as a society, either as a school, collective involvement is very important. Then the sensitization sessions with school, with community, anywhere you are there, matlab, you can, on based on this model, you can do it like with five, in your own society, with five societies, in your own college, anywhere. Then children and youth participating in segregation at source, collection and transportation. If you have a good amount, even there are certain recycling company that come and collect your waste at free of cost. Recycling plastic into usable product, incentivizing student and all, and then the waste to wealth. Tons of plastic prevented. And we understand that, there is, that day only I was discussing, I think with Avdut, that there is one thing that यहाँ पे जो income generation होता है rag pickers का, ये थोड़ा मतलब it is like a social hurdle for us. So we can also find a way to include them during when we collect it, or we connect them to the schools that they can collect it. So their hygiene situation will also improve. Instead of going into dump yards and all picking up the plastic, they can get direct plastic from schools, communities, and for them it is a good income generation. Yes, we had challenges. First most challenge was that weight to volume ratio was highly disappropriate. इसमें क्या हो रहा था ना कि सी, कंसिडरिंग कि हम स्कूल से कलेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे हम, वहां पे बेल भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज बेल भी करेंगे तो वी हैड टू फर्स्ट माइक्रो सेग्रीगेटेड. सो इसके वजह से हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहे थे. अगर वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर ओन, अगर यूएलबी का सपोर्ट हो रहा था तो काफी कम हो रहा था. इट वाज कमिंग डाउन टू, मतलब हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट वाज ऑलमोस्ट 95% लेस, बिकॉज देन हमें एक आध दो बार ही ऑटो वगैरह भेजना पड़ रहा था जहाँ पे वो शेड्यूल में नहीं बैठ रहा था अगर एन स्कूल इज कॉलिंग. फिर considerable weight of plastic waste, minimum 3 to 5 tons required for recycling process. तो यहाँ पे we needed a MRF or a storage location. तो if ULB is giving their support, ये cost भी कम हो जाता, लेकिन शुरुआत में ULB नहीं support कर रहा था, तो हमें कहीं पे रखना पड़ रहा था, क्योंकि then 3 to 5 tons we had to transport to the recycling facilities. Third was getting the ULB integrated for participation and leverages of resources. Because multiple projects ho gaye hai, we can't even blame them. There is a lot of duplication happening. So we have to find a way to integrate our intervention with each other. Whoever is doing, youth is doing, NGO is doing. अगर दो NGO कर रहे हैं, so they should meet up and integrate the intervention. Then leverage the resources. Okay, you can do this towards, you can do this towards. So cost efficiency is very important. And inculcating behavioral change with respect to segregation at source. Behavioral change has always been a challenge, but a year-long program has shown promising result. बहुत promising result हुआ है, because right now we get calls from the schools that now we are practicing, we have tied up with X recycler, and once a month we give them our plastic waste जो बच्चे घर से लेके आते हैं. So it is like that, it will work, but it needs a lot of integration and leveraging. Yeah, that's it. Thank you. Yes, thank you, Zainab. That was really helpful. कि एक तो ऐसा इनिशिएटिव लेना, और एज यू कंसिडर आपने सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी उस इनिशिएटिव की, वो भी आपने उसमें से काफी ये किया था. एंड आई थिंक onboarding all the required stakeholders at ULBs, even waste, because you are thinking now, and giving back something to the community in uh, for their whatever they are doing the effort. So I think that was really
good initiative from Thank you. CSER and your. Thank you for sharing your experience. I think हमारे भी कुछ colleges can consider if they can do such kind of initiative Sure, and you can, इसको मतलब sustain करने का if they can think then that will be really good. And even Star Campus Award, Vinayak sir has shared the link in the chat box. So you can Yeah. also visit that link and apply for the Star Campus Award and participate. So एक Yeah. question था. So we can now move to questions. So एक अनिकेत मिस्त्री से क्वेश्चन था कि प्लास्टिक से हम काफी चीजें बनाते हैं बट जो चीजें अगर और किसी इससे बन सकती है फॉर एग्जांपल चेयर्स हो या फिर आई थिंक टेबल्स हो सो उसके लिए तो हम प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं क्या सो दैट वो दैट बी गुड सेट. Okay. Before going towards the answer, first I would like to thank Zinab for the initiative that they have taken, and it is really awesome to see such kind of projects. And I am aware of such kind of project called Safai Bank of India, which is run by some organization, Mumbai Sustainability Center. The same kind of idea. Students are picking up waste from their houses, segregated it, and collected at the school level, and the class monitor will take a note of all students how much of waste they are taking and how much they have a passbook system there. Every student will have a number of waste that they have collected, and then in every month they pick up the waste from the school. So it's a very beautiful project, and I really appreciate that you have taken it very next level. And I forgot to mention that even school can apply for the Star Campus Award, and this kind of initiative is considerable for waste management, the best practices under waste management. So if you can please share the message with the schools, so and ask them to apply for the Star Campus Award, we can really pick one or two schools from the that they have did a really great job in the your in your campaign, so that we can really appreciate their and recognize their efforts, so that other schools can get inspiration. Yeah, कि that देखो उनके उनके efforts को इतना अच्छा recognition मिला, तो let's हमें भी और अच्छा करना चाहिए, तो उनको एक inspiration मिलेगा. So please convey the message of sure, the we'll do Star that. Campus We'll Award. do that. Yeah, thank you. Now coming to the answer that uh, uh, with the plastic chairs and other material that we use and how we can give a alternate option for them. So see, the thing is uh, हमारे मन में अगर हम बोलते हैं कि प्लास्टिक फ्री, तो हम हमारे आंखों के सामने सारी प्लास्टिक की चीजें आती है, जिसमें इंक्लूड हमारे लैपटॉप मोबाइल भी है, जिसमें बहुत सारा मटेरियल प्लास्टिक का यूज हुआ है. एंड अगर हम हमारे डेली लाइफ में भी देखें या फिर हमारे पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी देखें, प्लास्टिक से बहुत ही इतना फैला क्यों प्लास्टिक, या फिर इतना वाइड यूज क्यों हुआ? बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग and it replaces many other resources, which is metal and other glasses, and which is very durable. And it the most beautiful thing about plastic is recycling ability. And so the plastic is the not problem, but the recycling and the bringing back plastic to that chain of the recycling, this is the problem. And that's why what we are mentioning again and again, that is every plastic has the ability to recycle. And if you see any plastic product, if any pet bottle or any product of plastic, if you see the triangle shape in on that product, and there are some indicators you see on that bottle or the product of plastic, and in the indicator is has a meaning कि कितने बार ये प्रोडक्ट रिसाइकल हो सकता है, कितनी बार ये प्रोडक्ट रिसाइकल हुआ है, एंड कि उसका जो चेन है वो कैसे हो सकता है. Definitely we can give a alternate to the plastic chairs, to wooden chairs or other metal chairs, but you can इमेजिन कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में से प्लास्टिक चेयर को अगर हटा रहे हो, तो उतना सारा वुड का चेयर हमें अगर उसको रिप्लेस करना है, तो कितनी फिर अगेन पेड़ काटने होंगे, बिकॉज वुड इज अगेन अ रिसोर्स, राइट. और मेटल, अगर हम देखते हैं कि उस प्लास्टिक चेयर्स को हम मेटल से यूज करते हैं, अगेन मेटल इज अगेन रिसोर्स. सो नॉट jumping into that conversation कि प्लास्टिक की सारी चीजें, but we emphasize on single use plastic, which is most dangerous and which is very harmful for our ecosystem. And multi-layer plastic, the packaging material, and many the big organizations are supporting this cause. Most of them have already making changes in their policy that they use recyclable material in their packaging and other things which is not using single use plastic.
and how they can bring back plastic from their products. Whatever products they are selling in the market, they are making a policies how they can recollect the plastic from the market as well. So there are some things which is we require to take action, but most importantly, educate people that not throwing plastic here and there, but ensuring that whatever they are throwing the plastic, that ensure the way the how it can be recycled and it come again into chain of circular economy, right? Because many waste thing or many plastic thing that we throw, which are not recyclable. For example, single use plastic, multi-layer plastic, which cannot be recycled. We need to educate ourselves कि कौन सी चीजें रिसाइकलेबल है, कौन सी नहीं है, एंड जो है उसको रिसाइकल प्रॉपर करने के लिए लोकल कबाड़ी वाला को हमें देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमें पैसे दे के खरीद करता है हमारे से, राइट? उनका तो ये एक इनकम ऑफ सोर्स है, उनकी लाइवलीहुड तो उस पर डिपेंड है। तो हमारे घर में जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको जो हम यूज नहीं करते, उसको हम प्रॉपर रिसाइकलिंग चैनल के थ्रू दे सकते हैं। बात रह गई सिंगल यूज प्लास्टिक की, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, डेली प्रैक्टिसेस में हम यूज करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक, कुरकुरे के वेफर्स, चॉकलेट वेफर्स, जो भी प्लास्टिक के पैकेजिंग मटेरियल्स है वो, उसको हम अगर सेग्रीगेट अच्छी तरह से करके रख सकते हैं, तो वो सेग्रीगेट करके वो कबाड़ी वाला तो लेगा नहीं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या फिर जो सिस्टम आपके सोसाइटी में जो आपके जो जहाँ पे आप रहते हो, वहां पे एक ऐसा सिस्टम आपको अगर है तो आपको उसको सपोर्ट करना होगा, नहीं तो आपको एक बनानी पड़ेगी कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक का जो क्लीन सिंगल यूज प्लास्टिक का वेस्ट है उसको इकट्ठा करके उन सिस्टम्स में आपको उसको देना होगा, हैंड ओवर करना होगा। ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रादर देन की थ्रोइंग देम हियर एंड देयर। अगर वो आप थ्रो करते हो, वो एक एक्शन हमारे पूरे प्लैनेट को, पूरे इकोसिस्टम को डेंजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक छोटी सी आदत आप डालोगे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा है वो इकट्ठा करके रखिए, और जब आपको पता चलता है कि ऐसी सिस्टम मेरी नियर बाय, मेरे नेबरहुड में कहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे इसका इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा। जैसे अपसाइकल आपने टर्म सुनी होगी, रिसाइकल तो आपने सुनी है, लेकिन अपसाइकल एक टर्म ऐसी है, उस मल्टीलेयर प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को कॉम्प्रेस करके उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, पैड्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है। आपको उसका मैं ये भी लिंक भी दूंगा, तो वहां पे आप वो प्लास्टिक दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते हैं, ये इंश्योर करके कि आप वो प्लास्टिक नेचुरल सिस्टम्स में थ्रो ना करें। सो दिस इज द वन वे दैट वी आर एम्फसाइजिंग मोस्ट। या, थैंक यू। Thank you for your response. I think मैंने कहीं पे it was a report by some circular initiative or something कि hardly some 8 to 10% hard plastic has been recycled till when the plastic has been in the use. So I think as you said कि plastic is not a problem, वो recycle नहीं होता है और वो system हमारे इतने set नहीं हुए, that's the problem. एंड आई थिंक इट वाज रियली नाइस कि हम प्लास्टिक वो यूज कर नहीं करना छोड़ देंगे तो बाकी रिसोर्सेज पे जो लोड आएगा वी कांट इवन इमेजिन। या दैट वेरी वाज ट्रू। दिस इज अगेन दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, बट अगेन वी आर डिमांडिंग दैट कि कम से कम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स नए बनाए जाए, मतलब रिड्यूसिंग द प्लास्टिक 60% प्लास्टिक प्रोडक्शन बाय 2024, इट्स अवर एम एज अ ऑर्गेनाइजेशन कि जो नए प्लास्टिक सिस्टम में आ रहे हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑलरेडी सिस्टम में है उसका रीयूज बढ़े, उसका रिसाइकल बढ़े, उसका अपसाइकल ज्यादा से ज्यादा हो, और बाकी अगर जो नए सिस्टम में आ रहे हैं उसको हम थोड़ा सा कम करें और 60% उसको रिडक्शन करें, तो ही हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो प्लास्टिक है उसका हम अच्छी तरह से यूटिलाइज उसका कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। So I think we are at the concluding session of this webinar now. Thank you, Vinayak, and thank you, Zainab, for sharing your valuable inputs with us on the occasion of Earth Day webinar. मैं और अब हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि आई नो कि सब कुछ ही किसी के एग्जाम चल रहे हैं अभी, किसी के सबमिशंस एंड ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट यू स्टिल मैनेज टू ज्वाइन today's webinar. So thank you for joining us. And maybe next month or in few days we will have some another webinar or another some such kind of theme where we will have with us a new speaker and a new topic. Thank you very much. Thank you very much all of you and have a nice day. Thank you Vinayak and Zainab again, and thank you all the participants. Thank you, Avdut. Bye. Thank you, Adu. Thank you, everyone. Bye.